Good morning, students. I am here to summarize a lesson of very important and the very first lesson. The title of the lesson is The Summer of the Beautiful White Horse. And the writer of the lesson is William Saroyan. William Saroyan was born in Fresno, California as the son of an American immigrant. And he moved to New Jersey in 1905. His first collected stories were published in the Overland Monthly. Is the name of the collection of his first collected stories, and the title is of the book is the Overland Monthly. Many of his stories were based on his childhood experiences. And his life period is 1908 to 1981. Saroyan's, the writer's life period, is 1908 to 1985. And his father moved to New Jersey in 1905. And the writer published his first stories collection with the name The Overland Monthly. राइट, ओवरलैंड मंथली नाम से कलेक्शन इनका आया, फर्स्ट स्टोरीज का कलेक्शन आया, और उसमें उन्होंने बहुत सारे आर्मेनियन अमेरिकन फ्रूट ग्रोवर्स के बारे में लिखा और चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस की स्टोरीज लिखी. ये स्टोरी भी उन्हीं में से एक है, वन ऑफ देम. राइट, नाउ आई वांट टू टेल समथिंग रिलेटेड टू द स्टोरी. द स्टोरी इज अबाउट टू पुअर Armenian boys who belong to a tribe. His hallmarks are trust and honesty. Hallmarks are trust and honesty. ये hallmarks था उस ट्राइब का, उस समुदाय का, कि वो लोग ऑनेस्टी और ट्रस्ट के लिए जाने जाते थे. The whole tribe was poor stricken. They were hardly making their both ends meet. बहुत ज्यादा भुखमरी से जूझ रहे थे, गरीबी से जूझ रहे थे उस समुदाय के लोग, जिस समय की कहानी है. और दोनों टाइम उनको खाना मिलना तक मुश्किल था कि वो सुबह खा लिए तो शाम को मिलेगा कि नहीं मिलेगा, शाम को खा लिया तो सुबह मिलेगा कि नहीं मिलेगा. उसी का ये एक चैप्टर है, इस तरह की स्टोरीज है, इसमें बिलोंग नोटेड डाउन की गई है, प्रेजेंट की गई है. टाइटल क्या है? द समर ऑफ द ब्यूटीफुल व्हाइट हॉर्स. राइटर्स नेम इज विलियम सेरोयान. आई एम गोइंग टू समराइज द लेसन. द समर ऑफ द ब्यूटीफुल व्हाइट हॉर्स is narrated by 9-year-old Aram Geroglanian, a member of an Armenian community. He belonged to Armenian community, living among the lush fruit orchards and vineyards of California. One morning, Aram was awakened before morning dawn by his 13-year-old cousin Murad, who was thought to be demented by everyone except Aram, and had a way with animals. Aram was astonished to see that Murad was sitting on a beautiful white horse, because they belonged to a poverty-stricken tribe. So it was unbelievable for them, for Aram especially, that Murad came to him with a beautiful white horse. It was impossible for them to purchase such type of horse, such a beautiful horse, or to purchase a horse. Aram had always wanted to ride a horse, but his family was too poor to afford one. However, the Geroglanian tribe was noted not only for its poverty but also for its honesty. So it was unthinkable that Murad would have stolen the horse. It's very important. He couldn't believe that Murad had stolen it. So Aram felt that his cousin couldn't have stolen the horse. ये कहानी एक 9 इयर्स के ओल्ड बच्चे ने जो है यहाँ पर नरेट की है, जिसका नाम एरम है.
और वो गैरोग्लेनियन फैमिली से बिलोंग करता है। गैरोग्लेनियन फैमिली की ये स्टोरी है। उसका एक कजिन है, 13 इयर्स ओल्ड है, मुराद नाम है जिसका। वो एक दिन बड़ी अर्ली मॉर्निंग डॉन टाइम लगभग 4 o'clock मॉर्निंग में पहुंचता है। सडनली आरम को जगाता है। आरम जब देखता है कि मुराद जो है वो एक ब्यूटीफुल व्हाइट हॉर्स में है, तो वो बिलीव ही नहीं कर सकता, क्योंकि वो लोग बहुत ज्यादा गरीब थे, टू पुअर। इतने गरीब थे कि एक टाइम खाना मिलता तो दूसरे टाइम नहीं मिल सकता था। तो इतना महंगा और व्हाइट हॉर्स, इतना खूबसूरत हॉर्स कैसे परचेज कर लिया? बिलीव ही नहीं कर सकते थे, अफोर्ड ही नहीं कर सकते थे इस चीज को। जब अफोर्ड नहीं कर सकते तो इतना ब्यूटीफुल हॉर्स कैसे? लेकिन उनकी जो फैमिली थी, उनका जो ट्राइब था, गैरोग्लेनियन ट्राइब, ये अपनी ऑनेस्टी के लिए भी जाना जाता था। तो वो ये भी बिलीव नहीं कर सकता था कि उसका जो कजिन है मुराद, 13 इयर्स ओल्ड, की उसने इस घोड़े को कहीं से स्टोल किया हो, चुराया हो, स्टील किया हो या स्टोलन किया हो। वो बिलीव ही नहीं कर सकता। तो दोनों चीजें, एक आयरनी है कि वो एक ब्यूटीफुल हॉर्स के साथ मुराद आया, और उस ब्यूटीफुल हॉर्स में उसका ख्वाहिश थी आरम की कि वो इस तरह के ब्यूटीफुल हॉर्स में कभी राइड करे। तो राइड भी करना चाह रहा था वो, लेकिन उसकी फैमिली, उसका ट्राइब इतना महंगा, इतना जो है घोड़ा अफोर्ड नहीं कर सकता था। और दूसरी बात कि उसके ट्राइब का कोई सदस्य किसी चीज को स्टील या चुरा भी नहीं सकता था। इट्स आयरनी ऑफ द स्टोरी। Aram was invited to ride on the horse with Murad. The idea of Murad stealing the horse drained away from Aram's mind, as he felt that it wouldn't become stealing until they offered to sell the horse. They enjoyed their riding on the horse for a long time. Murad's crazy behavior was considered to be a natural descent from their uncle Khosrow. Another character whose name was Khosrow. Even though his father Zorab was a practical man, Uncle Khosrow was an enormous man who was always furious, impatient, and irritable. You can say that. It's a character, Khosrow. In fact, one day when his son came and told them that their house was on fire, Khosrow silenced him by roaring, "Enough! It is no harm. Enough! It is no harm." He was habitual to say these words, answer these words, right, of any question. Khosrow. After a long day of riding, Murad wanted to ride alone on the horse. Aram had the same longing, but when he sat on the horse and kicked its muscles, it reared and snorted and raced forward, dropping Aram off its back. मुराद के द्वारा आरम को ऑफर किया गया कि वो राइड करे, और आरम का ख्वाब था राइड करना इस घोड़े पर। और इस इनविटेशन ने उसके दिमाग से बात ही निकाल दी कि जो है कहीं ना कहीं मुराद ने इस तरह के घोड़े को स्टील किया होगा। तुरंत बात उसके दिमाग से निकल गई, राइट। यदि स्टील किया हो गया होगा तो पक्का कहीं ना कहीं इस घोड़े को बेचने की बात होती, पैसा कलेक्ट करने की बात होती, लेकिन नहीं, राइड की बात हो रही। इसका मतलब घोड़ा ये चुराया नहीं गया। वो लोग उन राइडिंग का एंजॉय किया, बड़े लंबे समय तक एंजॉय करते रहे। उस दिन बहुत घूमते रहे। मुराद का जो नेचर था, बिहेवियर, वो क्रेजी था, थोड़ा पागलपन से भरा हुआ था। और वो उसका नेचर अपने अंकल खुसरो से मिलता था। उसके अंकल खुसरो भी इरिटेटिंग थे, इरिटेट करते थे लोगों को, राइट। और इम्पैशेंट, बड़ा अधीर थे, फ्यूरियस, बड़े गुस्सैल थे। और जब भी उनसे कोई बात कहता था, कोई भी चीज कहता था, तो हमेशा एक ही क्लासिकल आंसर उनका आता था। क्लासिकल आंसर क्या था? इनफ, इट इज नो हार्म। ठीक है, पर्याप्त है, इससे कोई नुकसान नहीं होने वाला। हर बात का उनका एक क्लासिकल आंसर था। एक बार उनका बेटा, वो सेव करा रहे थे, उनका बेटा पहुंचा, उसने कहा कि घर में आग लग गई है, जल्दी चलो। खुसरो से कहा, उसके मुराद के अंकल से, तब भी उन्होंने यही कहा, ठीक, कोई बात नहीं, चलो, इससे कोई नुकसान नहीं। इस तरह के वो थे। जबकि जो मुराद के जो फादर थे जोराब, वो बहुत प्रैक्टिकल और डिसेंट पर्सनालिटी थे वहां के, राइट। मुराद फिर सवारी उस ऑफर करता है, दोनों राइड करते हैं। मुराद उसके बाद कहता है कि मैं अकेले राइड करूंगा,
अकेले राइड करता है। फिर उसके बाद आफ्टर दैट आरम ऑल्सो वांटेड टू राइड अलोन, आरम भी अकेले राइड करना चाहता है। वो जैसे ही बैठता है, किक करता है हॉर्स के, हॉर्स स्नॉर्ट करके जो हिन्हाट करके जो है नेगिंग करके तेजी के साथ फुंकार मारते हुए दौड़ता है और आराम पीछे गिर जाता है और घोड़ा आगे अकेले निकल जाता है। That afternoon an Assyrian farmer named John Barrow, an Assyrian friend of the Geroglanians, came to Aram's house. एक जॉन बैरो जो फ्रेंड थे गेरोगैलियन फैमिली के, वो एरम्स के हाउस पहुंचे उसी आफ्टरनून। He reported to Aram's mother that his white horse, which had been stolen a month ago, was still missing. उन्होंने वहां पर जॉन बैरो ने ये इन्फॉर्म किया कि जो उनका घोड़ा एक मंथ पहले चोरी हो गया था वो अभी तक मिसिंग है, मिला नहीं है। Hearing that, Aram concluded that Murad must have had the horse for a long time. ये सुनते ही एरम को लगा, अरे मुराद के पास तो ये एक महीने ज्यादा से घोड़ा है और उसने तो मुझे आज ही कराया सवारी। इसका मतलब वो एक महीने पहले से इसमें प्रैक्टिस कर रहा है, राइडिंग कर रहा है। खुसरो who was at Aram's house when Barrow came, shouted his dialogue. It's no harm. खुसरो जो अंकल थे वो उस समय वहीं पर मौजूद थे आरम की हाउस में, और उन्होंने तुरंत कहा सुनते ही, इससे क्या नुकसान है, ठीक है, इनफ, इट्स नो हार्म। To such an extent that Barrow was forced to sprint out to avoid responding. ये सुनते ही वहां से बैरोज निकल गया बिना किसी रिस्पांस किए हुए। इन दुखी था और ये बात एरम को पता लगी, उस 9 years old को, जो नरेटर है इस स्टोरी का, उसे पता लगी कि ये घोड़ा चुराया गया है। मुराद ने, जो कि ग्लैनियन फैमिली से बिलोंग करता है, जो अपनी ऑनेस्टी और ट्रस्ट के लिए जानते हैं, उस फैमिली से बिलोंग करने वाले लड़के ने, उसके कजिन मुराद ने इस घोड़े को चुराया है। एरम ran to मुराद to inform him of Barrow's arrival. बैरो के आने की खबर पहुंचाई उन्होंने। ठीक दौड़ते हुए एरम पहुंचा कि बैरो आया था अपना घोड़ा लेने, तुमने उसका घोड़ा चुराया है। और तब तक वो एक वाइन यार्ड्स में जो है उसको बंद करके रखता था, और वो क्या मॉर्निंग टाइम मुराद निकालता था, राइड करता था, और उसके बाद आकर के वाइन यार्ड्स में छुपा करके खड़ा कर देता था ताकि उसको कोई देख ना सके, उस घोड़े को कोई आइडेंटिफाई ना कर सके। एरम ऑल्सो प्लीडेड टू मुराद नॉट टू रिटर्न द हॉर्स, लेकिन एरम जो कि बहुत ऑनेस्ट था, वो बिल्कुल सोच ही नहीं पा रहा था कि स्टील किया गया होगा, उसके सामने रियलिटी आ गई। उसके बाद भी ही रिक्वेस्टेड टू मुराद नॉट टू गिव बैक द हॉर्स, कि घोड़ा वापस ना किया जाए। ये डिजायर है कि हम बहुत ऑनेस्ट है, लेकिन जब हमारी डिजायरेबल चीज हमारे सामने होती है तो हम अपनी ऑनेस्टी को भी कहीं ना कहीं पीछे छोड़ देते हैं, अपने मॉरल वैल्यूज को पीछे छोड़ देते हैं, क्योंकि हमारी मोस्ट डिजायरेबल चीज है, एक ऐसी चीज जिसको हम अफोर्ड नहीं कर सकते, वो हमारे सामने हो, तो वी वांट टू टेक इट, वी वांट टू एंजॉय इट, राइट। तो उसने रिक्वेस्ट की, ही कुड लर्न टू राइड, उसने कहा तब तक मत दो जब तक मैं सीख नहीं जाता। मुराद disagreed by saying that Aram would take at least a year to learn, but promised that he would keep it for 6 months at most. उसने कहा, मुराद ने डिनाई कर दिया, उसने कहा तुम्हें घोड़ा सीखने में तो 1 year लग जाएंगे, लेकिन उसने कहा फिर भी 6 महीने में रख सकता हूं, 6 months. That became a routine. रूटीन हो गया, मुराद लेके आता था मॉर्निंग में घोड़ा लेकर के और एरम के साथ जाता था राइड में, फिर घोड़ा वहीं बांध देता था। मुराद यूज्ड टू केम डेली टू पिक एरम टू राइड, एंड एरम कंटिन्यूअसली फेल ऑफ द हॉर्स बैक आफ्टर every attempt. 2 weeks later, they were going to take the horse back to its hiding place when they met Barrow on the road. डेली लेके जाता था, और जब दोनों राइड करते थे साथ में, जब एरम अकेले राइड करता था तो घोड़े के बैक से वो जो है गिर जाता था, घोड़ा स्नॉर्टेड करके नेगिंग करके दौड़ के भाग जाता था उसके किक करते ही। 2 वीक्स के बाद जैसे ही घोड़ा वो लेकर के हाइड प्लेस से को लेके जा रहे थे, तभी जॉन बैरो उनको मिल गया। कौन? जॉन बैरो, जिसका वो घोड़ा था, राइट। ऑन द रोड द फार्मर वाज एक्सट्रीमली सरप्राइज्ड, फार्मर जो था वो एक्सट्रीमली सरप्राइज था। He recognized his horse but refused to believe that the boys had stolen it. घोड़ा पहचान गया, लेकिन उसने
रिकॉग्नाइज करना है, जो उसको बिलीव नहीं हो रहा था कि इन लड़कों ने घोड़ा चुराया होगा। ही सेड द हॉर्स इज द ट्विन ऑफ माई हॉर्स, ये जो घोड़ा जो तुम लोग लिए हो आयरम और मुराद, वो मेरे घोड़े का बिल्कुल जुड़वा है, ट्विन है, कोई फर्क नहीं। एंड अ सस्पिशियस मैन वुड बिलीव हिज आइज इंस्टीड ऑफ हिज हार्ट, और एक सस्पिशियस मैन जो होता है अपनी आंखों में बिलीव करता है अपने हार्ट की कंपेरिजन, जो कि हार्ट क्या कह रहे थे, गैरोग्लेनियन फैमिली से लोग हैं, ऐसा नहीं करेंगे, लेकिन आइज उसको दिखा रही थी ये घोड़ा वही है, उसी का है, बैरोज। एंड दैट नाइट दे रिटर्न इट टू द फार्मर जॉन बैरो, और उस रात उन लोगों ने जाकर के उस जॉन बैरो को उसका घोड़ा क्या किया, रिटर्न कर दिया। Thus the Garogleanian fame of honesty saved them, और इस तरीके से उन दोनों लड़कों ने, एरम और मुराद ने, स्पेशली मुराद ने जो है गैरोग्लेनियन फैमिली की ऑनेस्टी को, रिपुटेशन को बचा के रखा, इंजॉय भी किया। और जब वो घोड़ा आइडेंटिफाइड हो गया और कुछ एरम सीख भी गया, मुराद की भी जब डिजायर पूरी हो गई, तो जाकर के चुपचाप उस घोड़े को जो है उन्होंने जॉन बैरो के यहाँ बांध दिया, उसको रिटर्न कर दिया। इस तरह से कहानी खत्म होती। बहुत अच्छी कहानी है। खुसरो का कैरेक्टर पूछा जा सकता है, एरम और मुराद का कैरेक्टर पूछा जा सकता है, ठीक है। एरम ने किस तरह से ट्रीट किया और मुराद ने किस तरीके से गैरोग्लेनियन फैमिली को बचाया, गैरोग्लेनियन फैमिली किस लिए फेमस थी, ये सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।